जी क्लास आज today's topic is writing your resume यानी अपने रिज्यूम को आप लिख के कर सकते हैं with the necessary information and a good plan in hand. You are ready to begin writing. If you feel uncomfortable writing about yourself, you are not alone. Many people, even accomplished writers, can find it difficult to write their own resume. So sometimes बहुत ज़्यादा experts जो हैं वो भी अपने resume को लिख नहीं पाते उन्हें स्पेशल किसी स्किल्ड मैन की जरूरत होती है जो उसके रिज्यूम को एक अच्छी शेप दे सके एक अच्छे फॉर्मेट में डाल सके by being your own client in this sense you might find the words and idea flow more easily. You can also find a classmate or friend who is writing a resume and swap projects for a while. Working on each other's resumes might speed up the process for both of you. Keeping your resume honest. First thing is that अपने resume को honest रखें. Estimates vary, but one comprehensive study uncovered lies about work history in more than 40% of the resumes tested, and dishonest applicants are getting bolder all the time. Going so far as to buy fake diplomas online, pay a computer hacker to insert their names into prestigious universities, graduation records, and sign up for services that offer phony employment verifications. It's been common to cheat. Observe Professor George Wallen of the University of Illinois कि बहुत सारे हम देखते हैं कि लोगों के जो रिज्यूम हैं वो ऑनेस्ट नहीं होते जो लोग हैं वो अपने रिज्यूम के अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते बल्कि उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो फेक इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से आपका पूरा जो क्रेडिबिलिटी है वो भी लॉस हो जाती है और आप जिस पोजीशन के लिए अपने आप को पेश कर रहे होते हैं उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं रहते तो इस सूरत में बहुत ज़रूरी है कि आप कीप योर रिज्यूम ऑनेस्ट सेकेंड इज अडॉप्टिंग योर रिज्यूम टू योर ऑडियंस अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूम को अडॉप्ट करें The importance of adapting your resume to your target readers' needs and interests cannot be overstated in a competitive job market. The more you look like a good fit, a quality hire, the better your chances of securing interviews. Address your readers' business concerns by showing how your capabilities meet the demands and expectations of the position and the organization as a whole. For example, an in-house public relations department and an independent PR agency perform many of the same tasks, but the outside agency must also sell its services to multiple clients. Consequently, it needs employees who are skilled at attracting and keeping paying customers. In addition to being skilled at PR, if you are applying for both in-house and agency PR jobs, you need to adopt your resume for each of these audiences. ठीक है यानी आपको उसके अकॉर्डिंग जिसके लिए आप जॉब के लिए आप अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूम को अडॉप्ट करना है यानी अपने उस टाइप के एक्सपीरियंस को मेंशन करें जो आपको उस फील्ड के अंदर लेके जाए सक्सेसफुल जो आपको बनाए वहाँ ये प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक सपोर्टिंग एविडेंस कंपोजिंग योर रिज्यूम के बाद आपका आ जाता है कि आप अपने रिज्यूम को कंपोज किस तरह से कर सकते हैं राइट योर रिज्यूम यूजिंग अ सिंपल एंड डायरेक्ट स्टाइल बेहतरीन हल ये होता है कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको आप जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा और जिस इंस्टीट्यूट के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वो लिखेंगे वो भी उतना ही बेस्ट रहेगा यूज शॉर्ट crisp phrases instead of whole sentences and focus on what your reader needs to know क्या सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके रीडर्स की डिमांड क्या है वो क्या जानना चाहते हैं अगर तो मसलन कि आप सेंटेंसेस लंबे लंबे सेंटेंसेस देंगे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देते जाएंगे बहुत ज़्यादा उसको स्टफी बनाते जाएंगे रिज्यूम को तो ये बेस्ट नहीं होगा अपने रिज्यूम को टू द पॉइंट रखें और जो आपके ऑडियंस आपसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर रहे हैं जिस आप उसमें वही इनको कोट करेंगे आफ्टर दैट avoid using the word I, which can sound both self-involved and repetitious by the time you outline all your skills and accomplishments.
Instead, start your phrases with strong action verbs such as these. इन action verbs के साथ अपने phrases को start करेंगे आप. Achieve, accomplished, administered, approved, arranged, assisted, assumed, budgeted, shared, changed, compiled and completed. ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे आ जाइए. Providing specific supporting evidence is vital, but make sure you don't go overboard with small details. Carefully select the most compelling evidence so that your message is clear and immediate. In addition to clear writing with specific examples, the particular words and phrases used throughout your resume are critically important. ठीक है, यानी जो वर्ड्स आप यूज करेंगे उनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है. यानी आप एक्शन वर्ड यूज करेंगे, अथेंटिक वर्ड यूज करेंगे तो वो आपके लिए उतना ही बेस्ट होगा. आपका रिज्यूम उतना रिच नजर आएगा, आपकी कैपेबिलिटीज आपके रिज्यूम के अंदर शो हो रही है. उसके बाद come to the next paragraph. Identifying these keywords requires some research, but you can uncover many of them while you are researching various industries and companies. यानी इन वर्ड्स को यूज करने के लिए भी आपके पास टेक्निक ये होनी चाहिए कि आप इसके बारे में रिसर्च करें कि ये वर्ड्स हैं क्या. ठीक है, उससे रेलेवेंट है जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उससे रेलेवेंट है या नहीं. ठीक है, इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि यू मस्ट सर्च द इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज. In particular, study job descriptions carefully in contrast to the action verbs that catch a human reader's attention. Keywords that catch a computer's attention are usually nouns that describe the specific skills, attributes, and experiences an employer is looking for in a candidate. Keywords can include the business and technical terms associated with a specific profession, industry-specific jargon, names or types of products or systems used in a profession, job titles and college degrees. नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. उसके बाद अपने रिज्यूम के अंदर अपना नेम और अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं. योर नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कंस्टिट्यूट द हेडिंग ऑफ योर रिज्यूम. इंक्लूड द फॉलोइंग. ठीक है, उसमें क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं? योर नेम, योर फिजिकल एड्रेस बोथ परमानेंट एंड टेम्परेरी, यानी आपका परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस, your email address, your phone number, the URL of your personal web page, e-portfolio और social media resume if you have one. ठीक है, ये सारी चीजें आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगी. उसके बाद आ जाते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देते हुए of all the parts of a resume, the brief introductory statement that follows your name and contact information probably generates the most disagreement. You can put one of three things here. You can choose to open with the career objectives. ठीक है, सबसे पहले आपने अपना उसमें इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में अपना ऑब्जेक्टिव करियर ऑब्जेक्टिव देना है, क्वालिफिकेशन समरी देनी है और करियर समरी देनी है. यानी 3 टाइप की आपकी हेडिंग्स हो जाएंगी. अब हम देखते हैं करियर ऑब्जेक्टिव्स में क्या है. A career objective identifies either a specific job you want to land or a general career track you would like to pursue. Some experts advise against including a career objective because it can categorize you so narrowly that you miss out on interesting opportunities, and it is essentially about fulfilling your desires, not about meeting the employer's need. In the past, most resumes included a career objective, but in recent years, more job seekers are using a qualification summary or a career summary. However, if you have little or no work experience in your target profession, a career objective might be your best option. If you do opt for an objective, word it in a way that relates your qualification to employer needs. ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वालिफिकेशन समरी पे आ जाइए. इसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन की समरी देंगे. A qualification summary offers a brief view of your key qualifications. यानी इसमें आपकी बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो इंक्लूड होती है. ठीक है, the goal is to let reader know within a few seconds what you can deliver. You can title this section generically as qualification summary. इसको आप heading भी दे सकते हैं qualification summary के नाम से. Next is career summary, जिसमें आपने अपने तमाम career को डिस्कस करना है. A career summary offers a brief recap of your career with the goal of presenting increasing levels of responsibility and performance. ठीक है, तो career summary can be particularly useful for managers. आपकी जो career summary है वो managers के लिए useful हो सकती है who have demonstrated the ability to manage increasingly larger and more complicated business operations.
a key consideration when companies look to hire upper level executives. ठीक है, इसके बाद आ जाता है एजुकेशन. आप इसके बाद अपनी एजुकेशन को मेंशन करेंगे. If you are still in a college or have recently graduated, education is probably your strongest selling point. ठीक है, education is very necessary. Present your educational background in depth, using facts that support your professional theme. Give this section a heading such as education, technical training, or academic preparation as appropriate. Then, starting with the most recent, list the name and location of each school you have attended, the month and year of your graduation. If you haven't graduated yet, your major and minor fields of study, significant skills and abilities you have developed in your coursework, and the degrees or certificates you have earned. Okay, उसमें definitely आप अपनी डिग्री सर्टिफिकेट्स देंगे, ईयर ऑफ पासिंग देंगे, जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है, उस डिग्री को अवेल किया है, उस डिग्री का नेम, सॉरी उसका एड्रेस भी आप देंगे. ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपने अगर ग्रेजुएशन अगर आपने किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, तो आप यूनिवर्सिटी का नेम देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी डिग्री का नेम देंगे, फॉर एग्जांपल बीए और एमए, आप कुछ भी जो आपने किया है. तो उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग देंगे. फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी का नेम देंगे, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब या रिफा यूनिवर्सिटी. ठीक है, उसके बाद आप देंगे उसका एड्रेस कंप्लीट देंगे. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने रिज्यूम में इंक्लूड कर सकते हैं. वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट. उसके बाद आ जाता है कि आप अपनी वर्क एक्सपीरियंस, अपनी काम करने का जो एक्सपीरियंस है, अपनी स्किल्स हैं या अकम्पलिशमेंट्स हैं, उनको आप राइट डाउन कर सकते हैं ऑन योर रिज्यूम. दिस सेक्शन कैन बी कॉल्ड वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और वर्क एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस. ठीक है, ये इसके 4 नेम है जो आप दे सकते हैं. If you have limited work experience and want to bolster that with volunteer experience, like the education section, the work experience section should focus on your overall theme in a way that shows how your past can contribute to an employer's future. Use keywords to call attention to the skills you have developed in the job and to your ability to handle responsibility. Emphasize what you accomplished in each position, not just the generic responsibilities of the job. List your jobs in reverse chronological order, starting with the most recent. Include military service and any internships and part-time or temporary jobs related to your career objective. Include the name and location of the employer. अपने employer का name भी दे सकते हैं आप. And if readers are unlikely to recognize the organization, briefly describe what it does. When you want to keep the name of your current employer confidential, you can identify the firm by industry only. A large video game developer, or if an organization's name or location has changed since you worked there, state the current name and location and include the old information preceded by formally. ठीक है, यानी अगर आप किसी ऐसी इंस्टीट्यूट में, अगर तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करें जो अभी भी काम कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उसका एक्सपीरियंस देखेंगे. लेकिन अगर आपका कोई एक्सपीरियंस इस तरह के इंस्टीट्यूट का है जिसने अभी अपना नेम चेंज कर लिया है या उसकी कुछ और लोकेशन वगैरह चेंज हो रही है, तो आप उसको फॉर्मली के वर्ड के साथ प्रीवियस जो स्टेट है वो डिस्कस कर सकते हैं. Devote the most space to the jobs that are most recent or most closely related to your target position. If you were personally responsible for something significant, be sure to mention it. Facts about your skills and accomplishments are the most important information you can give a prospective employer. So quantify them whenever possible. उसके बाद आ जाता है एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट्स. अपनी जो एक्टिविटीज और अचीवमेंट्स हैं आप उनको भी डिस्कस कर सकते हैं. यानी आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, गोल्डन स्किल्स क्या हैं, अगर आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है आप वो कर सकते हैं. अगर आप किसी प्लेयर रहे हैं, किसी गेम में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं. यानी आपने ये शो करना है कि जो अगर आपके पास कोई डिग्रीज वगैरह या इस तरह की स्किल्स नहीं है, तो आप अपनी कोई भी एक्टिविटी जो है वो शो कर दें कि आपने जो अपना लेयर टाइम है वो किसी फजूल एक्टिविटी में नहीं गुजारा, बल्कि आपने उसको कारआमद कराया. नेक्स्ट इज पर्सनल डाटा एंड रेफरेंसेस. के बाद आप एंटर कर सकते हैं अपना पर्सनल डाटा और रेफरेंसेस. In nearly all instances, your resume should not include any personal data beyond the information described in the previous section. When applying to US companies, never include any of the following physical characteristics: age, gender, marital status, sexual orientation, religious or political affiliations, race, national origin, salary history, reasons for leaving jobs, names of previous supervisors, names of references,
सोशल सिक्योरिटी नंबर और स्टूडेंट आईडी नंबर, ठीक है, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। Note that standards can vary in other countries. For example, you might be expected to include your citizenship, nationality, or marital status. However, verify such requirements before including any personal data. ये किसी भी personal data को मेंशन करने के बाद आपकी चीजें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सोशल सिनेरियो है पोजीशनिंग योरसेल्फ फॉर एन आइडियल अपॉर्चुनिटी, किसी भी आइडियल अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को ऑफर करें। सिनेरियो 2 में पोजीशनिंग योरसेल्फ फॉर एन अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, जो आपको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसके लिए अपने आप को ऑफर करें। एंड थर्ड सिनेरियो क्या है, पोजीशनिंग योरसेल्फ फॉर मोर रिस्पांसिबिलिटी, मजीद आप रिस्पांसिबल खुद को शो करना चाह रहे हैं तो आप तीसरा जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं। Here are the example, ये 3 टाइप के रिज्यूम दिए गए हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। जो ऑलमोस्ट थिंग्स जो है वो सेम है। ईमेल एड्रेस स्टार्ट में दिया गया है, फर्स्ट वाले सैंपल को आप देखें, इसमें फर्स्ट में ईमेल एड्रेस दिया गया है, परमानेंट भी दिया गया है और टेम्परेरी एड्रेस भी दिया गया है। देन देयर इज समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, देन एजुकेशन है, आफ्टर दैट वर्क एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, योर प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, एंड देन रिवॉर्ड्स है। बाकी रिज्यूम में भी आप देख सकते हैं यही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको एलेबरेट ज्यादा किया गया है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीटिंग योर रिज्यूम। अपने रिज्यूम को आप कंप्लीट किस तरह से कर सकते हैं। कंप्लीटिंग योर रिज्यूम इन्वॉल्व रिवाइजिंग इट फॉर ऑप्टिमम क्वालिटी, प्रोड्यूसिंग इट इन द various forms and media you will need, and proofreading it for any errors before distributing it or publishing it online. Be prepared to produce several versions of your resume in multiple formats and multiple media. These are discussed in the later section. यानी अपने रिज्यूम को अब आप कंप्लीट कर लें, आपने राइट डाउन कर लिया, अब उसमें कुछ मिस्टेक्स रह गई है, कुछ चीजें जो रह गई हैं तो आप कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हुए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम क्या देख सकते हैं। रिवाइजिंग योर रिज्यूम, producing your resume, producing a traditional printed resume, printing a scannable resume, and creating a plain text file of your resume. Okay, ये जो हमारे पास टॉपिक है इनको हम फर्दर देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज रिवाइजिंग योर रिज्यूम, अपने रिज्यूम को रिवाइज करें। Ask professional recruiters to list the most common mistakes they see on resume. ठीक है, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं आप उनको अपने रिज्यूम पे नोट डाउन करें, एंड यू विल हियर द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, टेक केयर टू अवॉइड दिस फ्लॉज। ठीक है, जो आपके रिक्रूटर्स हैं आपको अलाउ करेंगे, आपको बल्कि हाईलाइट करेंगे कि आप इन मिस्टेक्स को दूर करें। वो मिस्टेक्स कौन सी है? नंबर 1, टू लॉन्ग और टू वर्डी, या बहुत ज्यादा लंबे वर्ड्स ना यूज करें। टू शॉर्ट और स्केची, बहुत छोटे भी ना करें। डिफिकल्ट टू रीड, poorly written, displaying weak understanding of the business world in general of our particular industry or company, poor quality printing or cheap paper. Okay, उसके बाद full of spelling and grammatical errors. ठीक है, उसके बाद boastful, gimmicky design. ठीक है, इन चीजों को आप अवॉइड करें। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसिंग योर रिज्यूम, अपने रिज्यूम को प्रोड्यूस आप किस तरह से कर सकते हैं। No matter how many media and formats you eventually choose for producing your resume, a clean, professional-looking design is a must. Recruiters and hiring managers want to skim your essential information in a matter of seconds, and anything that distracts or and delays them will work against you. Fortunately, good resume design is not difficult to achieve. एक अच्छा डिजाइन बनाना जो है वो difficult नहीं है। Good design features simplicity, order, effective use of white space and clear spaces, make subheadings easy to find and easy to read, placing them either above each section or in the left margin. Use lists to itemize your most important qualifications. Color is not necessary by any means, but if you add color, make it subtle and sophisticated, such as for a thin horizontal line under your name and address. The most common way to get into trouble with resume design is going overboard with too many fonts, too many colors, and too much clutter. Depending on the companies you apply to, you might want to produce your resume in as many 6 formats. आपके पास 6 फॉर्मेट हैं जिनमें आप अपने रिज्यूम को डिजाइन कर सकते हैं। प्रिंटेड ट्रेडिशनल रिज्यूम है, सेकंड प्रिंटेड स्कैनेबल रिज्यूम, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक पेन टेक्स्ट फाइल, एंड नंबर 4 is Microsoft Word file, ऑनलाइन रिज्यूम also called a multimedia resume और सोशल मीडिया रिज्यूम, उसके बाद पीडीएफ फाइल है। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंसीडरिंग फोटोज, वीडियोस, प्रेजेंटेशंस एंड इन्फोग्राफिक्स, यानी अपनी आप सीवी के अंदर फोटोज, वीडियोस या प्रेजेंटेशन या इन्फोग्राफिक्स को आप यूज कर सकते हैं या नहीं। इसको बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी रिज्यूम को बिल्कुल सिंपल रखें, इसमें कोई भी फोटो वगैरह इंक्लूड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि साम कंपनीज जो होती हैं वो
ऐसी डॉक्यूमेंट्स को डिस्कार्ड कर देती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फोटोज हो, बहुत ज़्यादा वीडियो हो ऑनलाइन रिज्यूम के सिलसिले। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। क्योंकि उसके बाद आप देख सकते हैं इन एडिशन टू दीज 6 मेन फॉर्मेट्स सम एप्लीकेंट्स क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, वीडियोस और इंफोग्राफिक्स टू सप्लीमेंट द कन्वेंशनल रिज्यूम, यानी किसी भी कन्वेंशनल रिज्यूम को करने के लिए जो लोग हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करते हैं, वीडियोस यूज करते हैं। तो टू की एडवांटेज ऑफ पावर पॉइंट सप्लीमेंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज। बेसिक उसके क्या फायदे हैं कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी अपनी मर्जी से आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं एंड मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज भी इसमें आ सकती हैं। तो आर वीडियो रिज्यूम कैन बी अ कंपेलिंग सप्लीमेंट एज वेल। एज इन्फो ये चीजें आप ऑब्जेक्टिव के लिए अंडरलाइन कर लें। An infographic resume attempts to convey a person's career development and skill set graphically through a visual metaphor such as timeline or subject map or as poster with array of individualization. We come to the next point, producing a traditional printed resume. एक ट्रेडिशनल प्रिंटेड रिज्यूम आप किस तरह से बना सकते हैं वो भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। Even though most of your application activity will take place online, having a copy of conventional printed resume is important for bringing to job fairs, interviews, and other events. Many interviewers expect you to bring a print resume to the interview, even if you applied online. The resume can serve as a note-taking form or discussion guide, and it is tangible evidence of your attention to professionalism and detail. When printing a resume, choose a heavier, higher quality paper design specifically for resumes and other important documents. White or slightly off white is the best color choice. Avoid papers with borders or बैकग्राउंड। ठीक है, ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के भी नोट डाउन कर लें कि जो आपका पेपर होना चाहिए वो बिल्कुल सिंपल हो। ठीक है, अगर आप बॉर्डर वगैरह हाईलाइट्स वगैरह यूज करेंगे तो वो एक कलरफुल सी वो एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो एक अच्छा इफेक्ट है वो नहीं देता। ऐसी सूरत में कोशिश करें कि जितना आप सिंपल रखें उसमें वाइट और स्लाइटली ग्रे कलर का फॉन्ट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग है स्कैनेबल रिज्यूम। स्कैनेबल रिज्यूम को आप किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। यू माइट एनकाउंटर अ कंपनी दैट प्रेफर्स स्कैनेबल रिज्यूम, अ टाइप ऑफ प्रिंट है। अब यहाँ पर स्कैनेबल रिज्यूम की डेफिनेशन की गई है। व्हाट इज scannable resume is a type of printed resume that is specifically formatted to be compatible with optical scanning systems that convert printed documents to electronic text. These systems were quite common just a few years ago. ठीक है, इस सूरत में क्या होता है कि आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है जो ऑप्टिकल स्कैनिंग सिस्टम, यानी ऑप्टिकल स्कैनिंग सिस्टम जो इन तमाम टेक्स्ट को ज्यादा हाईलाइट करते हुए एक पिक्चर बना देता है, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन उसका बना देता है। ठीक है, a scannable resume differs from the traditional format in two major ways. It should always include a keyword summary. Basically एक keyword summary होनी चाहिए and it should be formatted in a simpler fashion that avoids underlining special characters and other elements that can confuse the scanning system. If you need to produce a scannable resume, search online for formatting a scannable resume to get detailed instructions. ठीक है, इस सिलसिले में आपने ये देखना है कि scannable resume को आप किस तरह से बना सकते हैं। Creating a plain text file of your resume. चलिए जी, आज तक इतना ही काफी है स्कैनेबल रिज्यूम तक। आपके लिए एक और असाइनमेंट है, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैन जो रिज्यूम्स हैं आपने वो कलेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें तकरीबन 5 स्टाइल्स होने चाहिए स्कैनेबल रिज्यूम के, और वो आपने अपने हिसाब से बनानी है। मतलब आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए और एज एन एम्प्लॉय आपने वो बनानी है, यानी ऐसा सीवी बनाना है कि फौरी तौर पर आपको रिक्रूट किया जाए। ठीक है, एक किसी एम्प्लॉयर के लिए आपने वो सीवी बनाना है जिसमें आपकी अपनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, इसको आपने असाइनमेंट को बनाना है और फिर सबमिट करना है। आज एलएमएस पे आपकी असाइनमेंट भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, क्या सेकंड फोर्थ असाइनमेंट जो है। एंड बी प्रिपेयर फॉर क्विज। फ्राइडे को आपका क्विज होगा, उस दिन अपने टाइम को मैनेज करें, लास्ट टाइम की तरह ना हो, उससे पहले आपने किया है उस दिन आपका क्विज लिया जाएगा। Yes, chapter number 12 was. The class, now you can ask question from today's chapter lecture.
ठीक है, इसमें से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें ये कैन डू। मैम असाइनमेंट में 5 तरह की यानी कि रिज्यूम बनानी है। जी असाइनमेंट में रिज्यूम बनानी है 5 टाइप की। हाँ जी, 5 टाइप्स के आपने ना स्कैनेबल जो रिज्यूम है, स्कैन रिज्यूम का भी आपने डेफिनेशन उसकी पढ़ी है, सारा उसके बारे में पढ़ा है। तो स्कैन रिज्यूम आपने सर्च करके अपने हिसाब से उसके 5 स्टाइल जो है ना रिज्यूम टाइप मुकम्मल रिज्यूम हो और उसकी यानी 5 स्टाइल में आपने वो बनानी है और सबमिट करानी है। जैसे आप सीवी बनाते हैं ना, अपना सीवी बनाते हैं जिसमें आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सारी चीजें ऐड करते हैं, इसी तरह का आपने ये स्कैन रिज्यूम बनाना है। और इसमें स्टाइल 5 जो है वो आपने सर्च करने हैं और वो मेंशन करना ये और मैम अबूजर कह रहा है मुझे अनम्यूट कर दे। जी। अबूजर का मैसेज आया, वो कह रहा है कि अनम्यूट कर दे मुझे, अनम्यूट नहीं हो रहा वो। मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है। तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो सारे अनम्यूट ही हैं। मैम वो कह रहा है कि वो अनम्यूट हो गया था, लेकिन अब फिर वो म्यूट हो गया है। ये म्यूट हो गए हैं, जी अभी देखें। इधर मैंने तो सबको अनम्यूट कर दिया हुआ है। You can ask questions if you have any question, आप पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था इस हवाले से कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने रिज्यूम को क्रिएट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तमाम जो ऑप्शन है वो आप यूज कर सकते हैं।
जी क्लास, एनी क्वेश्चन? आज के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए जी क्लास, फर्स्ट मीटिंग का टाइम जो है वो